Hello, so this is day 4 in Nashik, and I should be making videos every day, but I am not making, and I have no excuse to give. Otherwise, I would have told कि अरे यार मुझसे एक चीज़ नहीं हो पाती हर रोज़ and stuff like that. I'm made like this, and yeah, ये मेरी आदत है. I say this usually when someone is getting to that point that they're like, oh, तुम्हें ये रोज़ करना चाहिए, तुम कर क्यों नहीं रहे हो रोज़? तो then I get defensive about it. But usually also I tend to explain myself too much, just justify. I know why that happens. Um, lekin, what I want to share today is कि there is a difference between psychological terms of everything and living life. I mean, okay. So, what I used to do, and what I still do actually, which I know now is not less helpful, is that I used to term everything around human psychology. If someone is addicted, right? If someone is violent, so I will get to the reasons of why they are violent and addicted. And in psychology, no one is like you cannot call people dumb. Your therapist won't call you dumb. They will not call you names like that, and they will try to find a reason why everything happens. Yes, it is very good to understand for others, but I have used all these terms, I have used all of this to justify and validate whatever I was doing, even though it was not right, but I would justify it कि यार ये तो होता है, या फिर ओ मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ is like the worst tagline. um ये some cases में ठीक है, पर not every case. And now I realized कि जब हम थेरेपी में जाते हैं, थेरेपिस्ट हमारे से जैसे बात करता है, तो your friends are not supposed to talk like that to you. Your friends have the right to disagree with you. Your friends have the right to mock you. मतलब ऐसे not mock but tease you. Your friends have the right to scold you. थेरेपी में हम तब जाते हैं जब हमें बिल्कुल नीड होती है कि लाइक ओके वी नीड अ सेफ स्पेस टू कम्युनिकेट. वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर ओन इमोशंस. लेकिन इफ वी लर्न हाउ टू मैनेज आवर ओन इमोशंस थ्रू अ थेरेपिस्ट, दैट डजंट मीन दैट द होल वर्ल्ड विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू लाइक अ थेरेपिस्ट. सबको सेफ स्पेस ही होना है? नहीं, वी लर्न फ्रॉम द थेरेपिस्ट कि ओके दिस इज व्हाई आई डू थिंग्स, दिस इज व्हाई दिस हैपेंस, एंड नाउ आई रेगुलेट माई सेल्फ into living in the world, not the other way around, not making the world more like the therapy session, or not expecting, yeah, not expecting everyone to act like that, and not justifying everything you do like in the therapy session. So what happens when you do this, when you use these kind of terms? Of course, it is for forgiving oneself. If someone is addicted and they have been violent and they have, hurt themselves and others for a very long time, if they live in guilt, they won't heal. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को forgive करने की कोशिश करते हैं, ताकि that part does not rebel again. क्योंकि जब भी हम इंसानों को बोला जाता है कि ये नहीं करना, किसी बच्चे को बोला जाता है कि ये नहीं करना, तो वो हमेशा उसकी तरफ क्यूरियस रहता है कि ऐसा क्या है कि मुझे नहीं करना. सो इफ़ वी टेक दैट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ जो जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फॉरगिव करने के लिए हम ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं कि अच्छा हाँ मैंने इसलिए किया था, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसा हो चुका है. लेकिन
अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसे ठीक करूं, चाहे कितना ही वक्त लगे। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, मैं उसको थोप ना दूँ। मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर चीज़ें थोपी, मैंने अपने इन्वायरमेंट के ऊपर चीज़ें थोपी। मेरे को लगा कि यार मैं ऐसी हूँ बिकॉज ऑफ दिस दैट। आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन टू अदर पीपल कि मेरी जो गलतियाँ हो रही है ना, प्लीज डोंट माइंड दैट, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। दैट कुड हैव बिन राइट टिल अ सर्टेन एज, लेकिन ये जो माइंडसेट है वो दूसरों को मेरे लिए रखना चाहिए, वो उनका काम है कि वो देखें कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मैं जस्टिफाई करूँ सब कुछ और वही करती रहूँ जो पहले से कर रही थी। अब जैसे मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, इनकंसिस्टेंसी। सो आई एम नॉट गोना बीट माई सेल्फ अप एवरी टाइम फॉर being inconsistent, but I'm also not going to declare to everyone that, oh, मैं inconsistent पता है किस लिए हूँ, इसलिए हूँ। Because what that does is it justifies me not working towards my goal. It justifies that, and yeah, बस intention का difference है। अगर मुझे कोई डांट रहा है, अगर मुझे कोई बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट, तब मैं ये सब कह सकती हूँ शायद। इसे तब भी नहीं कहना चाहिए, लाइक ज़रूरत क्या है। Anyways, depends. But yeah, so this is the phase of my life where I'm trying to be more responsible of my actions rather than blaming it on, oh, trauma था मेरे को। नहीं। या फिर ओ मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैंने ऐसे। हाँ, ये सच है कि वो हुआ था और ऐसा होता है, पर आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ना। मेरे थेरेपिस्ट का काम है वो, मेरे थेरेपिस्ट का काम है मेरे को वो स्पेस देना, मेरे को समझाना कि ओके नाउ फॉरगिव योरसेल्फ, या आई फॉरगिव माई सेल्फ, नाउ मूव ऑन।